میرے بھائیوں، یہ جو نشانی ہیں یہ قربت قیامت کی ہیں۔ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر سے زیادہ نشانیاں بتائی، جن میں سے کچھ نشانیاں ظاہر ہیں۔ کنواؤں کا پانی سوکھ جانا، کمین لوگوں کے بارے میں جو چھوٹے لوگ تھے، جو یہی فرمایا اللہ کے رسول نے، جو جوتیوں میں بیٹھتے ہیں وہ تمہارے رہنما ہوں گے۔ مثال دے کے سمجھایا اللہ کے رسول نے کہ اونچی جو بھیڑتے ہیں وہ پہاڑ کے نیچے کو آئیں گی اور روڑیاں اوپر کو جائیں گی، اور تمہارے سرپرست وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے کمین ہیں۔ سب سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم جب اٹھ جائے گا تو لوگ جاہلوں سے مسئلہ پوچھیں گے اور ان کے مسئلے پر چلیں گے۔ سب سے پہلی نشانی ہے۔ کسی صحابہ نے عرض کیا ہے رسول اللہ، ہم سے علم کیسے اٹھایا جائے گا جبکہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہودی اور نصاریوں نے کتاب نہیں پڑھی اور پڑھائی۔ تو آج جو بھی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں، اور جب ہمیں دین کی فکر ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے بے فکر کر دیں گے، کیونکہ دین جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس پہ بہت سارے نبیوں کو پٹ ہوتے دیکھا ہے، قتل ہوتے دیکھا ہے، آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، دریاؤں میں بہتے ہوئے دیکھا ہے۔ باقی دین کو بگڑنا اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے، اور دین کا کام کرنے والے کو پسند کیا ہے۔ اب جتنا اللہ جس سے لے لے وہ اتنا کرے، یہ نہیں بھائی ساری ہی دنیا عالم بن جائے، ساری ہی دنیا حافظ بن جائے، یا ساری دنیا قاری بن جائے، یا ساری دنیا ابدال بن جائے، ساری دنیا قطب بن جائے، نہیں، یہ نہیں۔ جتنا اللہ جس سے کام لے لے۔ جب ہماری زندگیوں میں آج دین نہ ہے تو ہماری زندگیوں میں خرافات بھری ہوئی ہیں۔ جو اصل مقصد ہے اس کو چھوڑ کر کے ہم بہت ساری رسومات جو ہیں جو گناہ ہیں ان میں مبتلا ہیں۔ پھر جب رسمیں ہماری زندگی میں آ گئی تو پھر ہمیں حرام اور حلال کا پتہ نہیں رہا، حق اور ناحق کا پتہ نہیں رہا۔ پھر ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں، کسی بھی راستے پہ جا سکتے ہیں۔ اب اپنے جانور ہیں، اونٹ ہے، بیل ہیں، اگر اپن ان کے نکیل نہ ڈالیں تو کیا یہ ہمارے کہے کے انوسار چلیں گے؟ نہ چل سکیں۔ پھر ان کی مستی ہے، کہیں بھی چلیں، وہ کیسے بھی کھائیں، کیسے بھی پئیں، کچھ بھی کریں، ہمارا کام وہ نہیں کر سکتے۔ تو دیندار آدمی کے نکیل ڈلی ہوئی ہوتی ہے، جیسے اونٹ کے نکیل ڈلی ہوئی ہے ایسے مسلمان کے شب کے نکیل ڈلی ہوئی ہے۔ اس کو ہر حال میں حدود میں رہنا ہے نا بھائی۔ اگر کوئی بیوہ ہوتی ہے اپنے، اور کوئی آدمی پہلے سے ہی بغیر بی بی کے ہے، تو بھائی اس پہلے عورت کو عدت کرنی پڑے گی جب اس کا نکاح ہوگا، اگر یہ دونوں راضی ہوتے ہیں تو۔ دوسرے مذہبوں میں یہ نہیں ہے، یہ نکیل نہیں ہے نا۔ ہمارے پھر بھی نکاح ہوگا، اگر 10 بار بھی مرد عورت الگ الگ نکاح کریں گے تو نکاح ہی ہوگا۔ کہیں چوڑی پہرا دیتے ہیں، کہیں کچھ کر لیتے ہیں، کہیں کچھ کر لیتے ہیں، وہ نہیں۔ تو ہمارے ہے جو نکیل ہے، اور نکیل والا ہمیشہ سکھی رہتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی نہ کوئی مالک رہتا ہے نکیل والے کا۔ بیل ہے، بیل کے ناک ہم ڈالتے ہیں تو وہ باندھ دیں، ہماری مرضی کا وہ کھاتا ہے، ہماری مرضی کا پیتا ہے، ہماری مرضی کا کام کرتا ہے۔ اب وہی گائے سے دوسرا پیدا ہے جو جس کو بجھار بولتے ہیں، سانڈ بولتے ہیں، ہے نا، وہاں کے نکیل نہ ڈلی تو وہ کہیں بھی کھائے، کہیں بھی چرے۔ کوئی وہاں پہ تیزاب ڈالے تو اس کا کوئی حمایتی نہیں، کوئی پتھر مارے اس کا کوئی حمایتی نہیں، اس پہ گرم پانی ڈالے کوئی اس کا حمایتی نہیں۔ تو ایس تو زیادہ لے رہا ہے، ہمارے دیکھنے کے طریقے سے ایس زیادہ لے رہا ہے، باقی اس کا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ اور بیل اپنے مالک کا دیا کھاتا ہے، اپنے مالک کا دیا پیتا ہے، اپنے مالک کے حکم کے انوسار کام کرتا ہے۔ اس کے اگر کوئی ڈنڈی بھی مارتا ہے تو وہ مالک اپنی جان بھی گنوا بیٹھتا ہے اس کے بدلے۔ تو دین کا مقصد یہ ہے۔ آج ہماری زندگیوں سے سب سے پہلے جو نکلا ہے وہ دین نکلا ہے، اور ہمیں اس پہ اتنا بھی فکر نہیں ہے۔
अब कोई जुम्मा थोड़ी, कई जुम्मा है ऐसे जैसे हम 2-3 ही रह जाते हैं इसमें। तो अगर हमारी जिंदगियों में दीन होता, दीन का फिक्र होता, तो भाई अल्लाह का जो हुक्म है वो ये है कि ए ईमान वालों, जब जुम्मे की अजान दी जाए तो तुम खरीद और फरोख्त को बिल्कुल त्याग दो, छोड़ दो। अब तुम्हारे लिए मना कर दी, ये खुद अल्लाह ताला ने कहा। अब खरीद और फरोख्त ही नहीं है, सारे काम दुनिया भी जितने भी काम, इनको सबको छोड़ दो और मस्जिद की तरफ आ जाओ। आएंगे खुतबा के वक्त आएंगे, कोई सुन्नत नहीं पड़ेगा, कोई जुमा पढ़ते ही भाग जाएगा। जब तक हमें असल पता नहीं लगेगा, जब तक हमारी जिंदगी में दीन नहीं आएगा, जब तक बताओ भाई कैसे हमारा गुजारा होगा। हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चल रहे हैं इस दुनिया से, सफर है। आज साबान की 15 तारीख है और अभी इंशाल्लाह 2 जुमा और आएंगे और ये तीसरा जुमा है इस महीने का। और यह की कदर इतनी बड़ी है, अल्लाह के रसूल हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि इतनी इबादतें करते हुए मैंने अल्लाह के रसूल को किसी महीने में नहीं देखा जितना कि शाबान के महीने में करते थे। इतने ही रोजा रखते थे, निफली और महीनों में निफली रोजा इतने नहीं रखते थे। फिर अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत पे ये चीज लागू नहीं की कि भाई तुम रोजा रखो इस महीने में, फर्ज रोजा की पूर्ति हो जाए, क्योंकि अभी इस महीने के रोजा रखेंगे तो अगले महीने में ताकत ही नहीं रहेगी रखने की जो फर्ज है। इसलिए ना रखे तो कोई बात नहीं, रखे तो सवाब है। बाकी अभी तो 8 दिन का है ये जुमा, तो भाई 5 वक्त की नमाज छोड़ दी, अब हमने 8 दिन का जुमा छोड़ दिया। फिर एक दिन ऐसा आएगा साल भर की ईदों को भी छोड़ बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं तो हमें जाके झुकना पड़ेगा। अल्लाह तमाम जहां में बसने वाले मुसलमानों को 5 वक्त नमाज की तौफीक अता फरमाए। और जहां जहां भी मुसलमान आबाद हैं, अल्लाह ताला दीन की सूझबूझ अता फरमाए। अल्लाह ताला जिस बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं, सबसे पहले उस बंदे को दीन की सूझबूझ देते हैं। साहब रजी अल्लाह ने अपने बच्चों को कत्ल होते हुए देखा है, अपने बच्चों को यतीम किया है, अपनी बीवियों को बेवा किया है, अपने शहरों को छोड़ा है, अपने माल को छोड़ करके गए हैं, बाकी दीन का पल्लू नहीं छोड़ा। जब उन्होंने इतनी कुर्बानी दी है साहब रजी अल्लाह ने, जब जा करके आज हमारे ये नाम रखे जा रहे हैं जो आज हमारे नाम है। और हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं? 3 चीजें हैं बस भाई, 5 वक्त के नमाजी बन जाओ, 8 दिन में 1 जुमा पढ़ो, साल भर में तुम्हारे लिए 2 ईदें हैं उनकी नमाजें पढ़ो। हमसे वो तकाजा है ही नहीं जो उनसे तकाजा था। 2 मियाँ बीबी ईमान में दाखिल हुए, इस्लाम में दाखिल हुए, और वहां उन मक्का के कुफ्फारों ने नहीं टिकने दिया, तो वहां से हिजरत करके जब मदीने को चले तो लड़के वाले आ गए, हम नहीं जाने देंगे तुझे। बहरहाल लड़का नहीं माना तो लड़के वाले आ गए कि हम अपनी लड़के को नहीं जाने देंगे। और जबकि दोनों मियाँ बीबी मुसलमान हो चुके, कुर्बानी देखो भाई क्या है। मोटर बंद करी दी क्या भाई? कौन ने करी? साकिर जमील करी। तो खामिंद रवाना कर दिया और लड़की वालों ने लड़की को रोक लिया। अब गोद में बच्चा है, साल का या 6 महीना का या 1.5 साल का। लड़की के ससुराल वाले वहीं थे, उसने कही ठीक है तुम तुम्हारी लड़के को ले जाओ, हम अपने बच्चे को ले जाएंगे। खामिंद मदीना हिजरत करके चला गया, औरत को पीहर वाले ले गए, बच्चे को दादा दादी ले गए। रो रहे हैं, तड़प रहे हैं तीनों अलग अलग। बच्चा माँ के बगैर तड़प रहा है, माँ बच्चे के बगैर तड़प रही है, बीबी खामिंद के बगैर तड़प रही है, खामिंद बीबी के लिए तड़प रहा है। बाकी दीन को नहीं छोड़ रहे, एक वक्त की नमाज को नहीं छोड़ रहे, एक मसला को नहीं छोड़ रहे। रो रही है, बस बैठ जाती है और रोती है, उधर वो रोता है बेचारा मदीने के अंदर, उधर बच्चा तड़पता है, बगैर किसी का दूध नहीं पीता माँ के बगैर, और बच्चा रो रहा है, फिर रहा है। इसी औरत का भतीजा एक, अल्लाह ने उसके दिल में रहम बिठाया,
और उन्होंने उनसे अपने माँ बापों से बात करी कि खुदा के बंदे हो, ये जो मेरी फुप्पो ये तड़प रही है बच्चे के बगैर, बच्चे को वो ले गए, खामिंद उसका वहां चला गया और तुमने ये हत्या कर ली, यहाँ पे इसको रोक लिया, इसको भेजो यहाँ से। उनकी समझ में अल्लाह ने बिठाई, उस लड़की को, औरत को रवाना कर दिया, वो अपने खामिंद से जाके मदीना मिली। अल्लाह ने कुछ दिन में ऐसा किया कि वो बच्चा भी उनको मिल गया। तो मेरे भाई हमसे तो ये तकाजा है ही नहीं, हमसे तो तकाजा ही नहीं है। यही पानी नहीं मिल रहा है पीने को, ऊंटों को जिब्ह कर रहे हैं, उनकी आंत में से जो पानी निकलता है उसको पी रहे हैं, और फिर जिंदगी बचा रहे हैं अपनी, और फिर नमाज को नहीं छोड़ते, किसी भी मसाइल को नहीं छोड़ते। अगर हम पे इतनी शर्तें हम पे भी लागू हैं, बाकी अगर हम पे इतना जोर दिया जाए तो क्या बनेगा हमारा, हम तो कल ही टीका लगा लेंगे, तिलक लगा लेंगे। क्यों? 5 वक्त की नमाज के लिए हम तैयार नहीं, ब्याह शादियों में रस्म छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं, कोई भी चीज को, जितनी भी फिजूल खर्ची पहले ही हराम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम समंदर के किनारे बैठ करके वजू करो, 3 बार ऐजा धोनी है, अगर 4 बार पानी लोगे तो फिजूल खर्ची है, और फिजूल खर्ची हराम है। अगर कोई भी आदमी हमारे घर पे आता है तो कम से कम 2 लीटर की वो ठंड आती है, जो कितने की आ रही है, 100 की आ रही है, कितने की आ रही है, 100 की। और अगर वही 100 रुपए लगा के बढ़िया सिकंजी पिलाई जाए तो पूरे तो बच्चे पीएंगे सब धाप धाप के, और वो मेहमान भी पी लेगा। पर अब हमें तो काम वो करना है जहां से हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। हमसे पहले बुजुर्ग गुजरे, अभी 1:50 हो या टाइम तक झगड़न में ये बैठे बुजुर्ग पूछ ले, किसी से भी पूछ लो, मेहरी ना बीती। जबकि अब तो मंजूरन के कोठी भरी पड़ी है, जिनके एक कूड़ खेत नहीं है उनकी कोठी भरी पड़ी है। जब तो जमींदार, बड़े से बड़े जमींदार पे साल भर अनाज नहीं होता था, बाकी मेहरी नहीं बीतती थी, आंच नहीं बुझती थी। उनकी बरकत से अल्लाह ने हमें आबाद किया है। अब 2 ही चीज रहेगी हमारे पास, सुबह सुबह ही है तो चाय पी ले, और कभी दिल मारो तो ठंडा पी ले। ये भी खत्म कर दी भाई। हमारी 55-60 साल की उम्र होगी, जब हमने वो पिछले बुजुर्गों को कहानी खत्म कर दी तो हमारी औलादों ने हमारी कहानी खत्म कर दी। अब वो आ गई हेल और रेड बुल्ट, एक 60 की, एक 120 की। तो भाई अगर 10 को पिवा दी तो 1000 रुपये गए। तो जब हमारी जिंदगी में दीन नहीं है, हमें इल्म का पता नहीं है, जब भी तो हम इन कामन पे चल रहे हैं। इसी को तो कहते हैं गुनाह और बेलज्जत, हराम भी है और फिजूल खर्ची भी है। अगर 100 रुपए की या 60 रुपए की हेल और ठंडा वो कहा है रेड बुल्ट ना पी करके, उनकी अगर हम अपने बच्चों को अच्छा सालन खिलाएं तो कितना बड़ा सवाब है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारा सबसे अफजल सदका वो है जो तुम्हारे अहले आल पर खर्च होता है। अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया है कि अल्लाह करे तुम्हारा जो खाना उसको मुत्तकी लोग खाएं। हम किधर जा रहे हैं, किधर चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। क्यों नहीं है पता? क्यों गुमराह हो रही है नस्ल हमारी? इसका एक मकसद है। इसका मकसद ये है कि अगर कहीं खैर पाई की बात मिलती है तो वो मस्जिद में मिलती है।